Hello children, this is the third video on metals and non-metals. In the previous video we had studied about the physical properties of metals and non-metals, and in the second video we had studied about the chemical properties of metals and non-metals. Now in this video we will study about the uses of metals and non-metals and corrosion of metals, and we will also study about the alloys and its uses. The first use we will study about iron. There are different kinds of iron found. There is pig iron, which is hard and brittle because it has got a lot of carbon content in it, and this is used in making pipes, sinks and railings. Then there is wrought iron. Wrought iron को हम hammer करके molten wrought iron को we make nails, we make bolts, chains, wire nets, etc. Then there comes steel. Steel is having high carbon. Steel is having also having the carbon content that is 0.5 to 1.5%. That is why it's very hard, and it is used for making the construction of buildings. Then the uses of copper. Copper is, you all know, copper is used mainly to make electric wires and cables, and also in making electrical appliances. It is used for making, also used in making heating utensils and radiators and calorimeters. Then we come to aluminium. We all know in everybody's house there must be aluminium foil. This is used for making, for wrapping the food, for packing the food items. It is also used, the aluminium powder is used in paints, and it is also used in making the cooking utensils. Then we will talk about zinc. Zinc is used in dry cells. It is also used in the process called galvanizing of iron. This process helps to prevent iron from corrosion or from rusting. Then there are other metals like lead, chromium, nickel, titanium and mercury. Lead is used in making electrodes for automobile batteries, and it is also used for making alloys such as solder. And chromium is used for electroplating on iron to give it a very shining finish, like in bicycle handles. Nickel is used to electroplate on other metals to give them corrosion resistant finish. Titanium is also a light and strong corrosion resistant metals, and it is used to make bodies of aircrafts. Then mercury, you all know, it is used in thermometers and barometers. Why? Because it is liquid and at room temperature, and it is also very it can expand on little heat. Then we come to their common uses of non-metals and metalloids. Like silicon is used extensively on electronic and computer industries to make devices like transistors and microchips and solar cells. It is also used to make silicones, and they are used for making waterproof clothes. Then sulfur, it is used in making sulfuric acid and several other industrial process, because sulfuric acid is very important for in different industrial process, and it is used in vulcanization. What is vulcanization? Adding of sulfur in rubber, which helps it to make a little harder. That is called vulcanization. And because sulfur is also having some fungicidal properties, मतलब वो फंगस को ग्रो करने से इनहिबिट करता है, सो इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्किन ऑइंटमेंट्स, एंड या फिर हम उसको स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड या फंजिसाइड स्प्रेज में भी यूज़ करते हैं. Then phosphorus, it is used in making matchboxes and firework industries and and also in phosphate fertilizers. Carbon, you all know, graphite, जो पेंसिल की lead होती है वो ग्रेफाइट की होती है. ग्रेफाइट इज़ नथिंग बट अ कार्बन. And electrodes, because graphite is a very good conductor of electricity, it is also used in electrodes in dry cells. And आपको ये भी पता होगा, diamond is also a carbon. So diamond का यूज़ क्या है हमको सबको पता है, ज्वेलरी में यूज़ होता है, और कटिंग टूल्स, ग्लास को कट करने के लिए हमें डायमंड चाहिए होता है. देन charcoal is also a carbon. It is used to in filters to purify air and water, and it is also coal is also a carbon, and coal is used in as a fuel. Then uses of hydrogen, it is used in the for the manufacturing of
ammonia gas, which is used to manufacture fertilizers such as urea and ammonium sulfate. It is used in the extraction of metals such as copper, tin, lead and tin. Then नोबल मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे. नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में बहुत नीचे बॉटम पे होते हैं और दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव. और इनको हम इसीलिए, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, ना एसिड, ना वाटर से, ना एसिड से, ना अल्कली से, इसीलिए हम इनको नोबल मेटल्स बोलते हैं. और नोबल मेटल्स को किस लिए यूज़ किया जाता है? गोल्ड और सिल्वर को या प्लैटिनम को किस लिए यूज़ करते हैं? मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, बिकॉज वो अपनी शाइन नहीं लूज़ करते. और इनके कॉइन्स बनते हैं, इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है. इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में हम प्लैटिनम का यूज़ करते हैं, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट और मेजर्स भी प्लैटिनम इरिडियम अलॉय के ही बनते हैं. तो एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, यू ऑल नो. नाउ वी विल कम टू corrosion of metal. Corrosion of metal is nothing when it is nothing but it is the damage caused by on the metals by the reaction of metals with air and water. अगर कोई मेटल एयर और वाटर से डैमेज होने लगे, या उसको हम ये भी समझ सकते हैं, इट इज़ ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ स्लोली ईटन अवे व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं corrosion. Now we will go to the next page. And we will zoom it. आपने देखा होगा सिर्फ आयरन रस्ट करता है कुछ दिनों के लिए. अगर आयरन को हम बाहर छोड़ दें मॉइस्चर में या एयर में, मॉइस्ट एयर में, तो वो कोरोड हो जाता है, या उसके ऊपर ब्राउन कलर की कवरिंग आ जाती है, उसको हम रस्ट बोलते हैं. वो भी एक तरह का वो भी एक करोजन है आयरन का. इसी तरह कॉपर को या सिल्वर को भी अगर हम बाहर छोड़ दें तो सिल्वर ब्लैक हो जाएगा और कॉपर धीरे धीरे पहले ब्राउन होगा, उसके बाद वो ग्रीनिश पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दैट इज़ ऑल्सो कोरोजन. रस्टिंग ऑफ आयरन को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसको हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, और ये इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं. हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ए, बी एंड सी. ए में हमने थोड़ा सा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है, और इसका पर्पस ये है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका पर्पस ये है बेटा, ताकि ये मॉइस्चर जितना भी एयर में है उसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है. यानी कि हमने इस टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल को डाला है और कॉर्क में बंद कर दिया, और साथ में हमने कैल्शियम क्लोराइड भी डाला है, ताकि आयरन का कांटेक्ट बिल्कुल और बिल्कुल भी मॉइस्चर से ना हो. दूसरा टेस्ट ट्यूब हमने लिया है, हमने उसमें डिस्टिल वाटर लिया और उसको हमने पहले बॉईल किया है. जब हम उसको बॉईल करते हैं मतलब हम उसमें से सारी एयर निकाल देते हैं. यानी कि इस वाले आयरन नेल का कांटेक्ट हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर से किया है और एयर से नहीं किया. साथ ही जब हमने डिस्टिल वाटर को हाफ फिल किया था, हमने ऊपर से मोल्टन वैक्स डाल दी, और मोल्टन वैक्स जैसे ही कोल्ड वाटर में पड़ेगी वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, और वो उस एयर को भी उससे कांटेक्ट में नहीं आने देगी वाटर से, जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर है. यानी कि जो नेल है टेस्ट ट्यूब बी में, वो बिल्कुल और बिल्कुल एयर के कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर के कांटेक्ट में है. तो आपने पहला देखा, टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल सिर्फ और सिर्फ एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं है. टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ और सिर्फ आयरन नेल वाटर के कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में नहीं है. फिर हमने टेस्ट ट्यूब सी लिया और उसको हमने आयरन नेल को जब डाला तो उसमें एयर भी थी और वाटर भी था. यानी उसको हमने टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल कर दिया, और एयर जितनी है वो तो है ही, और उसमें हमने वाटर जो लिया वो टैप वाटर लिया है, उसको हमने कोई बॉयल नहीं किया. यानी कि जो ये आयरन नेल है, इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर. जब हम इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे इन तीनों को, तो वी विल सी दैट द आयरन नेल प्रेजेंट इन ए एंड बी are not rusted, but the iron nail present in C is the one which is rusted. इसका मतलब रस्टिंग के लिए हमको 2 कंडीशन की ज़रूरत है, वाटर एंड एयर. दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन मिसिंग होगी तो आयरन रस्ट नहीं करेगा. अगर हम आयरन की रस्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हम उसको और लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा वो एक बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि वो एक बेस बनाता है.
बिकॉज आयरन इज़ अ मेटल, और हमने ये पढ़ा है कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक। अब हम आते हैं कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन हमने पढ़ा है कि जब कॉपर कॉइन को हम मॉइस्चर से के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये टार्निश होकर के पहले डार्क ब्राउन बनाता है, फिर ब्लैक, डार्क ब्राउन या ब्लैक, उसके बाद फाइनली ये ग्रीन कोटिंग है। दिस इज ऑल्सो अ कोरोजन ऑफ कॉपर। सिल्वर, वी ऑल नो कि सिल्वर को अगर हम बहुत दिनों तक बाहर रखेंगे एयर के कांटेक्ट में, वो काला पड़ने लगता है। इट इज़ बिकॉज इट रिएक्ट्स विद H2S। आप इस रिएक्शन को देखिए, सिल्वर प्लस H2S गिव्स Ag2S प्लस हाइड्रोजन। दिस इज सिल्वर सल्फाइड। वो ब्लैक कलर की होती है सिल्वर सल्फाइड, और इसीलिए पहले ज़माने में सिल्वर इतना जल्दी ब्लैक नहीं होता था, क्योंकि ये एक पल्यूटेंट है H2S, और पहले ज़माने में ये गैस एयर में कम होती थी। मगर आज क्योंकि आजकल बहुत पोल्यूशन है, तो ये गैस का अमाउंट बढ़ गया है एयर में, और इसलिए सिल्वर बहुत जल्दी ब्लैक होने लगा है। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि वाई दीज डेज सिल्वर इज़ गेटिंग ब्लैक फास्टर। अब हम आते हैं प्रिवेंशन, किस तरह से हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम आयरन की रस्टिंग की बात करें तो हम आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग से या फिर अप्लाइंग ऑयल से। जैसे आपने मशीन्स में देखा होगा, अगर कभी किसी इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स यूज़ होती हैं बेटा, उस पर हम ग्रीस अप्लाई करते हैं या उसको पेंट करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो मशीन्स हैं आयरन की, वो धीरे धीरे रस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी तरीके से वो पेंट उखड़ जाए या वो ऑयल की लेयर हट जाए तो, और आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए एयर के और मॉइस्चर के, तो फिर से रस्टिंग स्टार्ट हो सकती है। फिर हम अगर किसी दूसरे मेटल से इसको हम कवर कर दें तो उसको हम बोलते हैं, जैसे कि हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं। गैल्वेनाइजिंग में हम आयरन की क्लीन शीट्स लेते हैं और उसको हम मोल्टन जिंक में डिप कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो मोल्टन जिंक की लेयर है वो आयरन के ऊपर चढ़ जाती है और आयरन हमारा कोरोडिंग होने से बच जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। जो आप पाइप्स खरीद के लाते हैं आयरन के, वो एक्चुअली गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम मेटालिक लेयर डिपॉजिट करते हैं। जैसे कि टिन को हम टिन इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन टू मेक फूड कंटेनर्स। अगर टिन की लेयर को स्क्रैच कर दिया तो वापस फिर से आयरन जो है वो नीचे का वो कोरोड होने लगता है, और वो फिर जो फूड आइटम स्टोर करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है। फिर हम आते हैं एनाडाइजिंग ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम एनाडाइज कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम की ऑक्साइड की लेयर हम एल्युमिनियम के ऊपर चढ़ा दें तो एल्युमिनियम फर्दर कोरोजन से बच जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उसमें हम एल्युमिनियम को एनोड की तरह यूज़ करते हैं। और जैसे ही एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है एल्युमिनियम से, तो क्या बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, प्रोटेक्ट करती है फर्दर कोरोजन से। अब हम आते हैं अलॉइंग में। कुछ मेटल्स को हम कोरोजन से बचाने के लिए अगर हम दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स कर दें तो वो कोरोजन नहीं होता है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, वो एक अलॉय है आयरन, क्रोमियम और निकल का, और वो आयरन होने के बावजूद भी वो रस्ट ईजिली नहीं होता है। अब अलॉयज़ क्या होते हैं, जब हम एक होमोजेनस मतलब जो एक जैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के, तो उसमें या तो दो मेटल्स ले लें या मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स भी ले लें। यूजुअली हम कार्बन लेते हैं और फिर हम उसको मिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है उनकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाती है। अलॉय की प्रॉपर्टी उसके जो दो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं उनसे बिल्कुल फ़र्क होती है या अलग होती है। लाइक अलॉयज कैन बी यूज टू इंक्रीज हार्डनेस। अलॉइंग हम क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि इट इंक्रीजेज द हार्डनेस। लाइक प्योर एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर आर वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी सॉफ्ट बट दे आर सॉफ्ट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। लेकिन जब हम इसको अलॉय कर देते हैं तो इनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
ठीक है। फिर हम अलॉइंग जैसे इज़ यूज टू मेक मेटल्स मोर रेजिस्टेंट टू दैट अटैक ऑफ केमिकल्स. क्रोमियम इज अलॉयड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील विच डज नॉट रस्ट. तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही हमने चेंज कर दी है, और वो रस्टिंग ही नहीं होती है आयरन में, स्टील में. क्यों? क्योंकि वो हमने अलॉय कर दिया है उसमें. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. और नेक्स्ट पेज में हम सोल्डर की बात करते हैं. सोल्डर एक अलॉय है जो कि यूज़ होता है कार्बन वायर्स को जोड़ने के लिए. वो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. और ये किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है लेड और टिन से मिलकर बना होता है. और इतना कम मेल्टिंग पॉइंट हो जाने की वजह से सोल्डर जो है वो कॉपर वायर्स को जोड़ने के लिए हम काम यूज़ करते हैं. फिर कुछ और भी अलॉयज़ दिए हैं इस टेबल में. ये टेबल मैंने आपके असाइनमेंट में भी दी हुई है. So I think that will help you to understand the alloys and the constituent of alloys and their properties also and their uses also. So now this chapter is finished, and I have I've tried to explain the uses of metals and everything related to the alloys also, and the corrosion of metals also. If you don't understand anything, you just write down in your copies what are the queries. I will answer all your queries when once we meet after the school reopens. And अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो you try to replay the video, try to find out the meanings from the dictionary if you don't understand some word in English. And I've also given the answers in this assignment, so you can go through those answers also, so that it will help you to understand different application based questions वो जो है होते हैं वो भी आप समझ पाएंगे. So I think we have completed this second chapter of chemistry. Second chapter of chemistry also is done. And okay, then thank you.